Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab. Hello and a warm welcome to again our pet project of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Atmanirbharta. Even the other day, Amit Shah ji also was focusing more on Atmanirbharta. We welcome it because India has got so much of wealth. The wealth is just not what you look at, whether it is rupees or dollars, but the knowledge, that knowledge allows us to be the most ancient civilization. I can proudly say that because why I say ancient civilization, we still follow the same rituals, except for COVID-19 when the modern pharma or WHO or CDC or whoever we are not against anyone. The show is not against anyone. We just try to bring out truth. When they try to belittle our own, that is when the India, the ancient civilization came through, and we are presenting to the world how good we are with your natural immunity, the herd immunity, सहज रोग निरोधक शक्ति और हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति, यही हमारी विधान और हमारी जीवन शैली है। क्या आत्मनिर्भरता इन सभी चीजों को, क्या हमारी संस्कृति हो, जीवन शैली हो या हमारे चिकित्सा विधान जो पूर्व परंपरा से काफी प्राचीन है, क्या उनको हम भूल गए? डिड वी फॉरगेट दैट? सो वी वांटेड टू रिमाइंड, क्योंकि Modi government has gone ahead in 2020. In that April itself, they have got a holistic bill, and Mr. Modi was espousing the cause of whether it is Ayurveda, homeopathy, or naturopathy. And what happened after that? How could the world bulldoze an elected government working for the welfare of the people? To strengthen that resolve, already we have a bill passed on holistic approach to health. Then why are we not trying to allow that Atmanirbharta in our culture? We are defined, we are identified by our ancient Indian culture, which leads to day to day lives. And in that, we have incorporated our own traditional way of curing or preventing a disease. Such a beautiful Indian civilization, Indian संस्कृति, तो इतनी अच्छी सब कुछ हमारे व्यवस्था में है, हमारे प्राचीन जो संस्कृति है सब कुछ है इसमें। निवारण हो या चिकित्सा हो या जीवन शैली हो, क्यों इसको नजरअंदाज कर दिया जा रहा? अप्रैल 2020 में होलिस्टिक जो बिल का प्राविधान भी हुआ राज्यसभा में, तब मेजॉरिटी भी नहीं था। इसके बाद में क्यों क्यों हमको डराया जा रहा है? क्या ये खाली हम एक वस्तु है जिसके ऊपर एक डर पैदा करे और पैसे कमाए? तो इस डर से आपको बाहर लाने की हम कोशिश कर रहे हैं आज कम फॉर लाइफ्स के मिस्टर जिग्नेश गोकानी जी। वेलकम सर, हार्दिक स्वागत है आपका। काफी दिन से हम नमस्कार। प्रयत्न कर रहे थे आपको लाइव शो में लाने के लिए। थोड़ी बहुत उनके बारे में, ये जो सुजोग मास्टर प्रैक्टिसिंग है, ये लास्ट 20 ईयर से इज बीन प्रैक्टिसिंग दैट, एंड ही हैज ट्रेन्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इन सुजोग therapy, and he is a resource person for Sujok therapy in Saurashtra University since 2008. So no one should have any doubt regarding his abilities for the sake of applying a cure. In doing so, the prevention aspect always comes. That is the beauty of our civilization. And he has been the first person to get registered as Sujok acupuncture doctor in India in 2009. And he has been the founder general secretary of ISA India and president of Karnataka Hyderabad Education Society Health Department, with the objective of creating pain-free India and employment opportunity for youth in urban and rural areas. This is the main aim of Karnataka Hyderabad Education Society. And he is committed to create Swasthya Bharat as dreamt by Honorable Prime Minister of India by including Indian traditional systems as mainstream healthcare initiatives. इसीलिए कम फॉर लाइव्स जो है काफी कुछ ये लोग कर रहे हैं, और इनके अचीवमेंट्स काफी है। पेन फ्री तेलंगाना इन 2017 इनॉग्रेटेड बाय
एक्स एमपी देन प्रेजेंट हरियाणा गवर्नर, अब तो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी इन एग्जीबिशन ग्राउंड ड्यूरिंग ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, हम नुमाइश कहते हैं। और एग्जीबिशन सोसाइटी आल्सो हॉनर्ड सुजोग टीम फॉर 3 years, उनकी जो सर्विस किए हैं। और ये स्वस्थ भारत, और उसके बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी भी, जो हमारी पूर्व विश्व यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी इस तरह की सोच, क्योंकि ये सोच वहां कोच करने पर इस तरह की सोच सही है, इंटीग्रेटेड ये इंडियन मेडिकल सिस्टम का एक बड़ा सबूत भी वहां मिल चुका है। सो वी कुड गेट ऑल दोज एविडेंसेस फ्रॉम देयर। సో ఈ రోజు మన ఈ షో మన ప్రాచీన సంస్కృతిని, మన జీవన విధాన శైలిని, దాంతోపాటు వచ్చే మన చికిత్స నివారణ కావచ్చు, అక్కడ చికిత్స కూడా కావచ్చు, అన్నీ మన ప్రాచీనమైనటువంటి మన సంస్కృతి జీవన శైలిలోనే ఉన్నాయి. మన వంటిల్లు కిచెన్ తీసుకుంటే అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో, తినేటివి ఏవి తినకూడదు, ఎప్పుడు తినాలా, ఏం తినాలా, ఇంత ఉన్న తర్వాత ఆత్మనిర్భరత భారత్లో ఎందుకు ఇది రాలేకపోయింది? 2020లోనే బిల్ వచ్చింది, హోలిస్టిక్ బిల్ పాస్ చేశారు, అయినా కూడా ఈ రోజు వరకు దీనిపై ఎందుకు చర్చించడం లేదు? పార్లమెంట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ, పంచాయతీ నుంచి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్, మున్సిపాలిటీస్, అసెంబ్లీస్ అండ్ లోక్సభ, దే ఆర్ సపోజ్ టు డిస్కస్. వీళ్ళందరూ చర్చించి ప్రజలకు ఏది మంచిది, ఏది మేలు, ఎందుకంటే చికిత్స కానీ నివారణ కానీ ఉన్నటువంటి రోగానికంటే ప్రమాదకరంగా ఉండదు. ది డిజీజ్, I mean to say the prevention or cure should not be more dangerous than the existing disease itself. चिकित्सा हो या निवारण हो, जो रोग है उससे जानलेवा नहीं होना चाहिए. So आज हम जिग्नेश जी को आमंत्रित कर रहे हैं. वेलकम सर, go ahead sir, and what is this all about? Because I just wanted to concentrate specifically so that we will have more time. And what is this Sujok and your background of getting into such system? बेसिकली मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, और साइंस ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमबीए पढ़ाई की, एंड 1998 में मैं पढ़ाई करके हैदराबाद आया। एंड उस वक्त मेरे फादर वाज सफरिंग विद द किडनी स्टोन, एंड अप टू 99 आई वाज, मतलब मेरा ये मानना था कि मॉडर्न मेडिसिन से ज़्यादा साइंटिफिक थियरी और कोई भी नहीं है। सो अप टू 99, जब तक मैंने ट्रेडिशनल थेरेपी के बारे में सुना भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, तब तक मैं बहुत ऐसा ही मानता था कि साइंस से ज़्यादा और साइंटिफिक, रिसर्च बेस्ड या और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सिस्टम पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सो आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोवर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन टिल 99। मेरे पिताजी को जब किडनी स्टोन हुआ, इट वाज अराउंड 1 इंच, 2.5 सेंटीमीटर जितना था, काफ़ी बड़ा था, और उसकी वजह से उनको पस सेल्स आते थे। और उस दौरान मेरी बहुत सारे डॉक्टरों से मुलाकात हुई, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ क्योर। तो उसमें एक 89 ईयर्स के बुजुर्ग थे, आई विल जस्ट कट शॉर्ट, कि उन्होंने कहा था कि मैं 3 महीने में इसको डिजोल्व कर सकता हूँ। तो वो आंखों से देख नहीं पाते थे, वो अपने पैरों से चल भी नहीं पाते थे। तो मुझे थोड़ी सी अंदर अपने आप को उनके ऊपर थोड़ी हंसी आई कि जो आदमी खुद चल नहीं पाता, जो देख नहीं पाता, वो मेरे पिताजी का स्टोन निकालने की बात कर रहा है। हालांकि उन्होंने मुझे बुक पढ़वाई भी, मुझे बताया क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ लीजिए, बट आई डेंट बिलीव हिम, ऑनेस्टली आई डेंट बिलीव हिम। मीनवाइल आई वाज सर्चिंग कि मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले एलोपैथी में। ओनली मुझे पापा का सर्जरी नहीं करवाना था, मुझे उनका पेट को ओपन करके सर्जरी नहीं करनी थी, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन विद मी इन एलोपैथी। तभी पता चला कि लिथोट्रिप्सी नाम की एक नई टेक्निक आई है, जिसके द्वारा बिना ऑपरेशन किए आप लेजर से किडनी स्टोन को डिसॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में गए, और वहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसको मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब जिसको एक प्रोफेशनलिज्म जो कहते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा, ये मैं बात कर रहा हूँ 98-99 की, तो तब अपोलो इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना आज है। सो तब हमारी बात हुई थी पैकेज के बारे में, और फिर उन्होंने कुछ वेरिएशन किए। अगेन जो डॉक्टरों से बात हुई थी, जो स्ट्रोक्स कितने दिए जा सकते हैं, देन 3500 वाज मैक्सिमम, ही गेव 5500 डिपेंडिंग अपॉन माय फादर्स बॉडी। सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने मुझे जो बताई और जो हुई, उन दोनों के बीच में गैप था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन के अंदर ऑनेस्टली वो चीजें नहीं बताई जाती जो होता है।
जैसे मेरे फादर के लिए बताया गया था कि 7 वीक्स, आई मीन 7 डेज आफ्टर द सर्जरी पूरा स्टोन निकल जाएगा लिथोट्रिप्सी के बाद। जब हम लोग डिस्चार्ज लेने के लिए गए तब बोले 3 महीने भी लग सकते हैं, और हो सकता है अगर प्रॉपरली नहीं निकला तो ये किडनी स्टोन वापस बन भी जाएगा। अभी ये सर्जरी के पहले नहीं बताया गया था। सो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि व्हाट आई वाज टोल्ड बिफोर सर्जरी एंड व्हाट आई वाज टोल्ड आफ्टर सर्जरी वाज नॉट मैचिंग। फिर वापस जब मैं घर गया तो मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे बुक पढ़ाई थी। फिर मैंने वो बुक खोली, देखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब वो किडनी स्टोन डिजोल्व कर सकते थे तो आज तो वो पूरा किडनी स्टोन को मैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो क्यों ना उसको एक्सपेरिमेंट करूँ। तो मैंने मेरे फादर को कहा था एवरी अल्टरनेट डे वी यूज टू एक्सपेरिमेंट, और मैंने स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ साइंटिफिक माइंडेड, तो मैं हमेशा चेक करता था कि उनका जो प्रेसिपिटेशन है, स्टोन का जो निकलने का जो आउटपुट है वो कितना रहता था। एंड आई फाउंड कि एवरी टाइम आई डू इट, इट वॉज 100% मोर कंपेयर टू प्रीवियस डे। यानी कि अगर जिस दिन वो ट्रीटमेंट नहीं लेते थे, कुछ खास नहीं था, ब्लैक टी पीना था रोज सुबह एम्प्टी स्टमक, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एवरी अल्टरनेट डे, तो जिस दिन पीते थे उस दिन काफी अच्छा पाउडर निकलता था, नेक्स्ट डे इट वाज लेस। सो देन आई रियलाइज कि भले वो बुजुर्ग जो भी बोल रहे हो वो कर पाते थे नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर तो ये मुझे दिख रहा है कि ये हो रहा है। एंड शायद 1 महीने के बाद हम लोगों ने देखा एंड वी फाउंड कि पूरा किडनी स्टोन निकल चुका था। सो दैट इज हाउ फर्स्ट टाइम आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ट्रेडिशनल थेरापी। फिर मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि क्या है ये चीज़ें। एंड जो उसके राइटर थे देवेंद्र बोरा जी मुंबई से थे, मैं पर्सनली मुंबई गया, उनसे मिला, तो पता चला कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर इंडिया के अंदर 1950 से प्रैक्टिस किया जा रहा है। हालांकि उसे उतना ज़्यादा वेटेज कहो या सोशल रिकॉग्निशन कहो वो उतना नहीं मिला था, लेकिन 1950 से इसको प्रैक्टिस किया जाता था। चिमन भाई दवे करके थे जिन्होंने भगवान एक्यूप्रेशर सेंटर नाम से बॉम्बे में शुरू किए थे, दैट इज इन 1950s। एंड उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरण बोले आरोग्यनी वाणी, अर्थात आपके जो चरण है वो आपके हेल्थ की जुबान बोलते हैं, उस तरह से उनका कॉन्सेप्ट था। तो उसमें प्रेशर पॉइंट पूरे पैरों में होते थे, देवेंद्र वोरा ने मॉडिफिकेशन किया। सो उस तरीके से पहली बार मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई विद्या है, ऐसा भी कोई साइंस है जिसके ऊपर कोई आदमी बरसों से काम कर रहा है। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 99-2000 की। सो दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। फिर मैं इंडिया के अंदर अत्तर सिंह जी के पास गया था जो चंडीगढ़ में रहते थे, एंड ही यूज्ड टू सी ऑलमोस्ट एवरी डे 700 पेशेंट्स इन 2000। तो उनके पास 25 से 28 उनके स्टूडेंट होते थे, एंड एवरी स्टूडेंट यूज्ड टू ट्रीट 15 टू 20 स्टूडेंट्स। सो उस तरीके से मुझे लगा कि ये भी एक साइंस है, ये भी एक विद्या है। एंड फाइनली मेरा कंफर्म हुआ जब मैं रमन कपूर जी से मिला। ही वॉज एलोपैथिक डॉक्टर, and being allopathic doctor he was practicing acupuncture for almost 15 years. So इस तरह से मेरी इस साइंस की तरफ एंट्री हुई कि जहां मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई साइंस है। और तब मुझे लगा कि एक्यूपंक्चर जो है, चूंकि उसको इतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो अगर इसकी और साइंटिफिक प्रूफ, अगर इसको और साइंटिफिकली पब्लिक के सामने लाया जा सके तो डेफिनेटली पब्लिक इसको एक्सेप्ट करेगी। इस तरह से मैंने 1999 के बाद 2000-2001 के आसपास इसको एज ए करियर लेना शुरू किया।